Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पहले तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज के साधु संघ के क्लास में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड though I'm not qualified, I will try. And let's begin with the opening prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamya Shloki Nashtaprayeti. Om Namo भगवते मुत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम एंड वेलकम। आज का जो श्लोका है वो है श्रीमद् भागवतम का 3.25.16। हरे कृष्णा। तो श्लोका कुछ इस प्रकार है। 3:25:16 अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वितं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम्। अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वितं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम्। हरे कृष्णा। Thank you so much. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When one is cleansed of the impurities of lust and greed produced from the false identification of the body as I and bodily possession as mine, one's minds become purified. In that pure state, he transcends the stage of the so-called material happiness and distress. Purport में पढ़ती हूँ, छोटा ही है तो I'll read it quickly. Kama and lobha are the symptoms of material existence. Everyone always desires to possess something. It is said here that desire and greed are the products of false identification of oneself with the body. When one becomes free from this contamination, then his mind and consciousness also becomes freed and attain their original state. Mind, consciousness and the living entity exist. Whenever
we speak of the living entity, this includes the mind and consciousness. The difference between conditional life and liberated life occurs when we purify the mind and the consciousness. When when they are purified, one becomes transcendental to material happiness and distress. In the beginning, Lord Kapila has said that perfect yoga enables one to transcend the platform of material distress and happiness. How can this be done is explained here. One has to purify his mind and consciousness. This can be done by Bhakti Yoga system. As explained in the Narada Panchatra, one's mind and senses should be purified. One's senses must be engaged in the devotional service to the Lord. That is the process. The mind must have some engagement. One cannot make the mind vacant. Of course, there are some foolish attempts to try and make the mind vacant or void, but that is not possible. The only process that will purify the mind is to engage it in Krishna. The mind must be engaged. If we engage our mind in Krishna, naturally the consciousness becomes fully purified and there is no chance of the entrance of the material desire and greed. Hare Krishna. Hare Krishna. तो आज के लेक्चर के लिए मैं श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर का रेफरेंस ले रही हूँ जो बॉम्बे में 16 नवंबर 1974 में हुआ था. सो मैं जो भी बोल रही हूँ इट इज प्योरली एंड प्योरली श्रील प्रभुपाद्स वर्ड्स एंड अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज फॉरगिव मी एंड मैं सिर्फ पैरट करने वाली हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है. हरे कृष्णा. तो ये श्लोका में हमें पता चल रहा है कि काम एंड लोभ ये जो है ये सिम्टम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस है. तो श्रील प्रभुपाद जी जो सबसे पहली चीज कहते हैं वो है दैट माइंड इज डर्टी. ये जो हमारा मन है ये डर्टी है एंड हमारा जो मन है ये हमारा मित्र हो सकता है या हमारा दुश्मन. तो इट डिपेंड्स कि ये हमारा दोस्त होगा या हमारा दुश्मन. अगर हमारा मन क्लेंज्ड है, क्लीन है, तो ये हमारा दोस्त रहेगा. अगर हमारा मन में जैसे काम, लोभ, दूसरे सेंसेस हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में है तो डेफिनेटली ये हमारा दुश्मन हो जाता है. तो जैसे अगर हम हमारी बॉडी को डेली क्लीन नहीं करेंगे, हम बात नहीं लेंगे, हम नहाएंगे नहीं, तो फिर हमारी बॉडी डर्टी हो जाती है, राइट. तो उसी प्रकार अगर हम उसे क्लीन रखते हैं तो बॉडी क्लीन रहेगी. अगर वो डर्टी रहेगी, हम नहाएंगे ही नहीं, तो हमें डिजीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो जो यहाँ पर रेकमेंड किया है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो वैष्णवस है और जो ब्राह्मण्स है वो 3 टाइम अपने बॉडी को क्लेंजिंग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. तो ये जो 3 टाइम वो क्लेंजिंग करते हैं, वो क्लीन करते हैं, तो उसकी वजह से वो बॉडी क्लीन होती है. ठीक है. तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं ये है कि हम हमारे माइंड को कैसे क्लीन करें, क्योंकि ये अभी जो करंटली जो माइंड है ये कंप्लीटली कंटामिनेटेड है. और ये किस चीज से कंटामिनेटेड है? हमारे जो डिजायर्स है. जब ये डिजायर्स होते हैं देन भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम एक जो हमारा सोल है इट इज स्टिल इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस. जो भी हमारे जो डिजायर्स है इट इज डिफरेंट. मटेरियल जो कंडीशन है, वो मटेरियल कंडीशन क्या होता है? वी ऑलवेज हियर दैट इट इज मटेरियल कंडीशन, बट मटेरियल कंडीशन क्या है? मटेरियल कंडीशंस है
जो ये हमारा काम वासना एंड जो जेलसी है, ये जो सिम्टम्स है, एनवी, ये सब जो है ये है जो मटेरियल कंडीशन है। तो जो वैष्णवस और जो ब्राह्मण्स होते हैं ये जो बॉडी है उसको भी क्लीन रखते हैं, और जो मैंने कहा ये श्रीमद् भगवद गीता में 18.42 में भी कवर किया है, सत्यम समो दमस्तितस्का। So the meaning of the material conditioned life means our mind is covered with dirt and unclean things. तो clearly यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि material condition मतलब हमारे mind में सिर्फ unclean things है। तो आजकल आप देख सकते हो कि बहुत सारे जगह पर ऐसे वर्कशॉप्स रहते हैं जो आपको कहते हैं कम एंड हैव पीस ऑफ माइंड। एंड पीस ऑफ माइंड में व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस कि आप आपके माइंड को पूरा ब्लैंक कर सकते हो। इट इज पॉसिबल कि आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाए और आप कुछ विचार नहीं कर रहे। बट श्रील प्रभुपाद यहाँ पे रिफ्यूट करते हैं स्ट्रांगली कि इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो। माइंड ऐसा है कि वो इतना चंचल है कि वो अभी इधर है, 2 मिनट में कहीं और है, 1 सेकंड में वो इधर से कहीं और चला गया, एंड इट इज कंटिन्यूस। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते रहता है या कोई ना कोई जगह पे जाते रहता है अपना मन। तो इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ही जगह पे स्थिर रहे। तो आजकल आप देखोगे कि ये बहुत पीपल आर सो मच डिस्टर्ब कि वो ऐसे क्लासेस के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप ऐसे स्टेट में रहोगे माइंड के कि आपको कुछ मतलब आप कुछ सोचोगे नहीं। बट श्रीमद् भागवतम ने हमें ऑलरेडी ये रेमेडी दे दिया है पहले ही। एंड श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये श्लोका में हमें बताया जा रहा है कि हाउ टू क्लीन दिस माइंड। तो यहाँ पर जो प्रोसेस रेकमेंड किया है श्रीमद् भागवतम में, इट सेज इन श्रीमद् भागवतम 1.2.17 दैट कृष्णा लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो कृष्णा सबके हार्ट में रहते हैं। एंड अगर हमें हमारे मन को क्लीन करना है तो हमें जो कंडीशन सोल है उसको हमें सिर्फ कृष्णा को अटैच करना है। ठीक है, तो बाकी सब चीजों से डिटैच होके हमें सिर्फ कृष्णा को अटैच करना है। बट करंटली हम सब ऐसे सिचुएशन में हैं तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं हम मूढ़ा मीनिंग दैट हम लोग एक गधे की तरह है, ठीक है, जिसको यही नहीं पता कि उसके ऊपर इतना जो धोबी होता है वो उसके ऊपर इतना सारा वजन डालते हैं, इतने सारे वो कपड़े लेने के पहले होता था, अभी तो व्हीकल यूज होती है ज्यादा करके, बट मे बी इन विलेजेस जहाँ पर गधे को यूज किया जाता है और गधे के ऊपर इतना सारा सामान डाल देते हैं और गधे को पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है और उस पे इतना सामान क्यों डाला है। और इतने कपड़े जो होते हैं वो तो गधा पहनता नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या है, बस वो ऐसे सिर्फ उठाता है एंड वो ऐसे लेके जाता है कि नहीं मुझे ये करना ही है। क्यों? क्योंकि उसको उसका जो मालिक है वो अगर इतना वो सामान लेके जाएगा तो उसको एक वो घास दे देगा खाने के लिए। परंतु जो घास है वो तो सब जगह उगती है, ये नहीं है कि उसको इतना वो बोझ इतना परिश्रम करके जाना है फिर ही उसको वो घास मिलेगा। घास तो भगवान ने सब जगह रखी हुई है और वो कहीं से भी खा सकता है, बट वो हम सोचते ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे। हम सोच रहे कि नहीं अभी मुझे इतना परिश्रम करना है। तो उसी प्रकार जैसे ये
आज जो हम सब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपना मटेरियल लाइफ मेंटेन करने के लिए। हम डेली ऑफिस जाते हैं और कितने आवर्स है ना, नॉट जस्ट आवर्स, मतलब अगर इंडस्ट्री में आप देखो 14-15 आवर्स लोग काम कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे, उनको मल्टी मिलेनियर बनना है, बिलेनियर बनना है, उसके लिए वो इतना परिश्रम कर रहे एंड क्यों? क्योंकि उसको फूड चाहिए, है ना, फूड मतलब रोटी चाहिए। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कितना रोटी खाएगा एक इंसान? मैक्स टू मैक्स 4 रोटीज खाएगा, ठीक है, और वो 4 रोटीज के लिए वो इतना परिश्रम कर रहा है, वो सब गिव अप कर रहा है। एंड मतलब वो रीजन क्या है इतना? व्हाई? बिकॉज वो ये सोचता है कि आई हैव टू मेंटेन दिस। हम ये विचार करते कि हमें ये मेंटेन करना है, मुझे मेरा ये फैमिली मेंटेन करना है, मुझे ये जो घर है वो मेंटेन करना है, उसके लिए मुझे इतना परिश्रम करना पड़ेगा। बट जिस प्रकार ये गधे का एग्जाम्पल था कि द ग्रास इज एवरीवेयर, तो उसी प्रकार हम थोड़ा भी करके इट इज इजी टू मेंटेन। एंड हम ये जो टाइम है वो कृष्णा के लिए कथा सुनने में, कृष्णा के ध्यान लगाने में हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी जो भी सोल्जर्स, सब लोग क्या विचार करते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिशियन सोचता है कि नहीं, अगर मैंने अपने कंट्री को इतना टाइम नहीं दिया तो मेरा कंट्री चलेगा ही नहीं। बहुत कुछ होता है। सो इट इज ऑन एवरी लेवल वी कैन थिंक कि कृष्णा इज द मेंटेनर। हमें वो वैसे सोचना पड़ेगा दैट कृष्णा इज द मेंटेनर, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड। एंड हम क्या सोचते हैं एक्चुअली कि जो है ना, वो हम सर्वेंट है हमारे फैमिली के लिए, तो इसलिए हमें उनको हेल्प करना है। हम सर्वेंट है हमारे कंट्री के, तो हमें उसके लिए परिश्रम करना है। हम सर्वेंट है अगर कोई स्टेट के, तो वो स्टेट के लिए। बट ऐसा नहीं है। आवर ओरिजिनल पोजीशन इज अ सर्वेंट ओनली, बट वो सर्वेंट है, वो कृष्णा के सर्वेंट है। तो वो सर्विस भूल कर हम अभी भी सर्वेंट है, बट वी आर ट्राइंग कि नहीं, आई एम द मेंटेनर, कि नहीं, मुझे ये मेंटेन करना है और मुझे इनको सर्विस देनी है। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हमें चेंज करना है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 9.14 में दैट हाउ डू वी क्लीन दिस, that always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these greatly souls perpetual worship me with devotion. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कृष्णा का जो ग्लोरीज है वो गाना है, श्रवणम कीर्तनम। We just have to keep chanting. We just have to keep listening to the glories of the Lord. We just have to speak the glories of the Lord. So, Srila Prabhupada कहते हैं that why is Krishna consciousness? Krishna consciousness क्या हुआ? Krishna consciousness मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के बारे में बात करते हैं, हम हमारे माइंड को कृष्णा के कॉन्शियसनेस में लगाते हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द टेम्पल? द टेम्पल इज द प्लेस वेयर हम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का नाम सुन रहे हैं, कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, कृष्णा को सम वे में हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पर बिजनेस का बातें नहीं होता है, वहां पर पॉलिटिक्स का बात नहीं होता है। So as a devotee, we are not interested in all of these things. Okay, we are only and only interested in
speaking about Krishna, hearing about Krishna, that is that is the process. And even in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam 1.2.1, it is clearly stated the process is if you try to hear Krishna Katha. तो जैसे मैंने कहा कि माइंड जो है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो इवन वाइल प्रॉब्ली जैसे अभी हम कोई लेक्चर लगाते हैं या फिर हम टेम्पल में कोई लेक्चर चल रहा है तो हम सुनते तो वो, बट सडनली हम फोन देखते हैं वो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हमें याद आता है, फिर हम रख देते हैं, फिर सडनली कोई साइड से जा रहा रहता है, हम उसे देखते हैं, अच्छा ये कहाँ जा रहे हैं, फिर सडनली हम वहां देखते हैं, अच्छा वो माता जी क्या कर रही है, अरे वो प्रभु क्या कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रैक्ट होता है। बट फिर भी हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम कृष्ण कथा सुने। वी जस्ट ट्राई कि कैसे भी हम थोड़ा अपने माइंड को वापस से वहां पर लेके आए। तो जितने बार भी डिस्ट्रैक्ट होएगा तो हमें वापस यहाँ पे लेके आना है। तो मैं एक चैंटिंग क्लास जो रहता है वो सुन रही थी, तो वो महात्मा प्रभु का था, और महात्मा प्रभु बोलते हैं कि जब भी आप चैंट करते हो और चैंट करते वक्त आपका माइंड जहाँ पर भी पहले जगह जाता है आपको वो जगह याद रखनी है। जैसे समझो मेरा गया फैमिली पे, ओके, then you have to remember that this is the place that I am most attached to. सबसे ज्यादा जो मेरा अटैचमेंट है वो मुझे मेरे फैमिली के लिए है। तो you have to remember and you have to pray to Krishna that please help me कि मैं अपने आपका नाम जप पाऊँ, and then you continue. So you always have to remember where does your mind keep going, so you can get it back and tell Krishna that please help me, and I can keep chanting without any distractions. And यहाँ पर हमें चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही इंस्ट्रक्शंस दिया है that there is no other way, ठीक है, we just have to chant, we just have to do sankirtan, we just have to keep thinking about Krishna. So there are different ways. आप कथा सुन सकते हो, आप कृष्णा के ग्लोरिफिकेशंस कर सकते हो, आप संकीर्तन कर सकते हो, आप बहुत सारे 9 प्रोसेस है, आप कोई भी प्रोसेस यूज करके, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कीप आवर माइंड एंगेज्ड इन कृष्णा, एंड दैट इज द ओनली वे टू क्लेंजिंग द माइंड। जैसे ही ये माइंड क्लेंजिंग होने लग जाता है, we will move from this material condition and we will transcend. तो ये जो दुखालय है, यहाँ पे एक्चुअली सबको लगता है that माइंड कहता है कि no, we have to do this, फिर हमें satisfaction मिलेगा and we'll be happy. हम ये करेंगे then I'll be so happy. हम $1 million कमा लेंगे, उसके बाद I will be very happy. But even after having $1 million, we will have 1 million problems which will give us dukha. So because this is a dukhalaya, वो possible नहीं है. So the only way this will be a sukhalaya is if we chant and हम constantly कृष्णा के बारे में सोचेंगे. So for this it is important कि हम जो है हम जो हमारा संगति है वो सिर्फ डिवोटीज के साथ रखे। अगर हमारे पास डिवोटीज रहेंगे, अगर हमारे पास गुरु महाराज का मर्सी रहेगा, डिवोटीज का मर्सी रहेगा, ओनली देन विद देयर मर्सी वी विल बी एबल टू एंगेज इन कृष्णा। तो अगर हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं तो दे विल टेल अस, सो नो यू आर सपोज्ड टू गेट योर माइंड बैक, दे विल पुल अस बैक, ओके। So everything should remind you. तो इससे मेरा आपके लिए ऐसा एक प्रश्न है कि आपको ऐसे कौन से डिवोटीज याद आ रहे हैं जो हमेशा ही अपने माइंड को कृष्णा में एंगेज रखते हैं? Anyone can answer? अम्बरीश महाराज।
अम्बरीश महाराज, यस माता जी, अम्बरीश महाराज. अमृत विलासिनी माता जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आई मिस. यस माता जी, प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज, yes. So Amrish Maharaj was someone that was जो सारे अपने senses को we have heard in Bhagavatam that he has engaged every single senses in Krishna consciousness. So we have Narad to try. Yes, Narad Muni. That is also one of the best example. Always chanting Hari Hari and Narayan Narayan. And Prahlad Maharaj was, मतलब उनको तो इतना his situation was ऐसा कि वो जो स्कूल था, उनका जो गुरुकुल था, गुरुकुल में भी उनके जो सारे मित्र थे वो सब राक्षस थे, ठीक है, परंतु वो सब हरी 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 बोलने लग गए. तो इवन जो जैसे भी सिचुएशन था, एंड ही वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ऑलवेज चैंटिंग अबाउट कृष्णा. मैं जो करंटली जो नरसिम्हा मूवी थी, उसमें उन्होंने इतने प्यार से एक पॉइंट जो बताया कि जो डिवोटी जो प्रहलाद महाराज थे ना, उनके जो टीथ थे ना वो ऐसे नॉर्मल थे, और बाकी सबकी ना ऐसे दांत ऐसे वो राक्षस वाले दांत थे. तो राक्षस लोग बोलते कि ये तो इसकी कैसे दांत है. तो ये सब स्मॉल पॉइंट से we'll come to know that how much of though his situation was like, जैसे अभी सब राक्षस है, वो लोग थोड़ी फल खाते होंगे, है ना, तो फल ग्रहण भी नहीं करते होंगे, देखते भी नहीं होंगे ये फल क्या होता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, they don't know, they don't want to see. But even in such a situation, he was so committed, and he was looking at that, क्योंकि people will be like, अरे अभी situation ऐसा नहीं है that मैं कहीं जाऊंगी तो I will not be able to follow something. But ऐसा नहीं है. If you just try, if you tell your mind that this is possible, then anything is possible. Narad Muni was also so such a mercy giving personality कि उन्होंने जहां पर भी जिनको भी उन्होंने जिनसे भी बात की है, जिन पे भी उन्होंने छोटा सा मर्सी ग्लैंस दिया है, that person has become a great devotee. We have seen जिनसे भी वो ऐसे टकरा गए, and he's given them Krishna consciousness. So we have to pray to him also that okay, please please give us also some little mercy. Any other example anyone can think? Prabhupada. Srila Prabhupada, yes, Srila Prabhupada is given all of us Krishna consciousness. He's awakened us, and imagine I think in today his arrival in Boston has been celebrated after 75 years. Today is the day. So hundreds and hundreds of devotees are there right now in Boston, and वो उनका भी वो कैसे कंडीशन में थे, वहां पे तो हिपीज थे. अगर आप कहीं बाहर जाओगे और आप जनरली आज के डेट में आज के जो हिपीज को मिलोगे, यू विल बी लाइक ये क्या प्रकार है, ऐसे भी कोई इंसान होते हैं, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड. एंड श्रील प्रभुपाद वाज स्टेइंग विद देम and making them understand that no, this is not how you do it, this is how you do it, like a child he was explaining, because they were so lost, they didn't even know अच्छा ऐसे कुछ करना होता है, उनको तो पता ही नहीं है. तो उनको वो कल्चर से सिखाकर कृष्णा को इंट्रोड्यूस करना, कृष्णा कॉन्शियस बनाना. तो he was so merciful to us, and he's given us Krishna consciousness. And then there is Tukaram Maharaj. If you see that Tukaram Maharaj also, वो खेत में गए, खेत की रखवाली करते थे,
एंड जस्ट उनका कीर्तन, वो कीर्तन करते थे हमेशा, तो कीर्तन करते करते जो खेत था वो, they were also, the trees were also so happy that they produced so much, they gave so much that it was too much. Even the farmer who owned the land was like, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इतना मतलब, so like we saw the first example that you don't have to worry. Krishna is giving. He is the giver. He is the maintainer. We don't have to worry. We just have to make sure that we somehow get our mind back and we can, think about Krishna. Anyone, any other examples? Okay. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ध्रुव महाराज, माता जी, ध्रुव महाराज Dhruv भी। Maharaj. Yes. वो भी even in such small age, there was so much of devotion and thinking about Krishna that Krishna himself comes, Vishnu comes. So that's we have to learn. मतलब श्रील प्रभुपाद यही कह रहे कि श्रीमद् भागवतम में ये जो पूरा प्रोसेस है और पूरा जो एग्जाम्पल्स है एंड जो टीचिंग्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है. We just have to learn. We just have to keep thinking about Krishna. We just have to listen to kathas. Always speak about the glorification of the Lord. Do Sankirtan, eat prasad. Srila Prabhupada, we are so lucky that Srila Prabhupada is already, उन्होंने already हमारे लिए सब set कर दिया है. If we simply follow, then our mind will get cleansed. वो clean होते ही जाएगा. अगर वो clean हो जाएगा, then we will be able to understand Krishna consciousness truly. So with this I will stop. हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई point होगा तो please add कर दीजिए, and अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ होगा तो please मुझे forgive कीजिए. हरे कृष्णा. Yes, YG Mataji, हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. First of all, I have to say, Sunday morning, itna smiling face, pleasant, pleasing, aapne, delivered the lecture, which shows that, utna, enthusiasm you have for that, and it kind of radiates, Mataji. And also proves that, bhakti can be a very happy process, because zyada log mera friends kehte hain na, normally, when you get older, you can get into bhakti and all that. You are an example to prove, that you don't have to be, old to get there. You can still enjoy the process. So I wanted to share that. And second one, Mataji, pura ye lecture is something that my mother personally always says, when it comes to mind control and sense control, 3 verses, she kind of has drilled that into me. 6.34, which is the problem. And then she says solution is 2.58 and 2.59. So we'll just recite the verses. 6.34, problem ye hai, chanchalam hi mana Krishna, pramati balavad तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम. यहाँ Arjuna is saying, it is like very difficult because the mind is very strong. It is more difficult than controlling the wind. And uska solution kya hai? 2.58. Yada samharate chayam kurmo gnaniva sarvashah indriyani indriyatevyas tasya prajna pratishtita. So like a tortoise, you have to withdraw the senses and keep it. But हमें पता है that eyes है तो the eyes will see, then ears है तो it will listen, right? So what do? Uska solution again, if we go further, 2.59. Vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. That is to develop a higher taste, which is Krishna consciousness, which you explained so beautifully, Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for the point additions. Hare Krishna. Thank you. Okay, then I'll stop here. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। इससे अभी हम लोग नरसिम्हा आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।